हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ Yes, रही है sir. सर। यस सर। सर स्क्रीन शेयर कर लो। ठीक है, विजिबल है। जी। सर क्लास स्टार्ट कर सकते हो। ठीक। Okay, so in the last class, we have discussed mainly accounting for minority interest. How do we account for minority interest in balance sheet as well as income statement? Okay, identification, quantification, and reporting. This all we have discussed. Now, in this class, I am discussing the goodwill. Goodwill. So goodwill, as you know, it is an intangible asset. So it mainly arises when companies acquires some other companies. Okay, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, जैसे मर्जर एक्विजिशन में मैंने आपको बताया था, मर्जर एक्विजिशन में आपको मैंने बताया था। आवाज आ रही है ना बेटा? आवाज आ रही? Yes, sir. But फोटो नहीं आ रही आपकी। है? आवाज आ रही है? हेलो? Yes, sir, आ रही है। ठीक है, ठीक है। Goodwill and intangible assets. So it arises when a company acquires another company. For example, in merger and acquisition, we have discussed this concept. So that means only purchased goodwill is recorded in the books of account, while internally generated goodwill is not recorded in the books of accounts. Okay. So goodwill is really a intangible asset. It arises when a company acquisition cost surpasses the fair market value of the acquired company's net asset. Okay. Let's understand this concept. What does it mean? For example, if a company A and there is a company B, okay, company A and company B. Now, if company A acquires this company B, it acquires company A is acquires company B. So this is known as acquisition. Acquisition हो गया. Has to pay some amount. ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी, एक कंपनी या दूसरी कंपनी परचेस करती है तो कुछ ना कुछ परचेस अमाउंट पे करना होगा, एक्स्ट्रा परचेस नहीं कर लेंगे. दैट अमाउंट इज नोन एज परचेस कंसिडरेशन. परचेस कंसिडरेशन. परचेस कंसिडरेशन. और we also call it as acquisition cost. एक्विजिशन कॉस्ट. तो एक कंपनी ने जो दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन. ठीक है, कितना अमाउंट आपको पे करना होगा दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए. तो एक्वायर का मतलब क्या है? कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर कर रही है, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कंपनी ए इज एक्वायरिंग मेनली असेट्स एंड liabilities. Company A is acquiring the assets of liability and of company B, while in reverse it is paying some amount to company B, that is known as purchase consideration. So acquiring assets and liability. So if we deduct assets minus liability, then it becomes net assets. Okay. So it becomes net assets minus liability. That net assets of company
वी जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी के हम क्या कर रहे हैं, नेट असेट्स को, नेट असेट ऑफ असेट माइनस लायबिलिटी. नाउ इफ यू लुक एट द फेयर मार्केट वैल्यू एफएमबी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी बी, ओके, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी बी एंड देन परचेज कंसिडरेशन. ओके, सो A and B, again I am writing A is acquiring B, that means A is acquiring the fair market value of net assets. Net assets. Net asset means assets minus liability. Then A is paying to B some amount that is known as purchase consideration or acquisition cost or acquisition cost. So if this purchase consideration exceeds, surpasses means exceeds the fair market value of net assets of B, company B, then this difference, the difference होगा इन दोनों का कि अमाउंट परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, फेयर मार्केट, तो लेट्स सपोज परचेज कंसिडरेशन इज 1 lakh and you have acquired the fair market value of net asset is only 80,000, only 80,000. The goodwill is, how do we calculate the goodwill? PC, purchase consideration or the acquisition cost minus the FMB, fair market value of these net assets. The difference would be 20,000. 20,000 is the goodwill. This is the goodwill. So this is the goodwill. ठीक है, यही है बेटा आपका goodwill. तो this is the definition. Goodwill means acquisition cost when exceeds, मतलब जब exceed हो जाए, बढ़ जाए, उससे ज्यादा हो, किससे, फेयर मार्केट वैल्यू से ऑफ द एक्वायर्ड, जो कंपनी है, जो एक्वायर्ड कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है बी कंपनी को, उसकी नेट एसेट, नेट एसेट का मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी. सो इट mainly contains non physical aspects, for example brand prestige. तो आप क्यों आप 20,000 रुपये ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि आप केवल 80,000 रुपये एक्वायर कर रहे हैं उसकी नेट एसेट को, 80,000 के आपने नेट एसेट एक्वायर करेंगे, बट यू आर पेइंग 1 lakh, तो भाई यार पेइंग एक्स्ट्रा 20,000 किस बात का दे रहे हैं. तो 20,000 आप देख रहे हैं कंपनी बी की ब्रांड प्रेस्टीज का, उसकी ब्रांड वैल्यू का, प्रेस्टीज मतलब ब्रांड वैल्यू का, ठीक है. कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के जो रिलेशनशिप बने हुए हैं कंपनी के साथ. देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आप दे रहे हैं कि कंपनी ने अपना कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसमें पेटेंट करा रखा है अपना आइडिया को, ठीक है. एंड देन वर्कफोर्स एक्सपर्टीज, हो सकता है कंपनी के पास ऐसी वर्कफोर्स हो जो एक्सपर्टीज, ठीक है. So you are paying amount for these brand value, customer relationship, intellectual property, and workforce expertise. This extra amount is known as goodwill. So we only recognize this goodwill. So it is mainly generated through during business acquisitions, especially when buying price, when buying price is higher than the combined market value of tangible assets as well as intangible assets minus liability. ठीक है, tangible intangible ये क्या हो गया आपका, tangible assets plus intangible assets minus liability means net assets. net assets. तो अब net asset हो गई, इनकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको लगानी है. दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको क्या निकालना है, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होगी मार्केट में आज के डेट की वैल्यू क्या है. अगर वो अच्छी हो जाता है तो एक्विजिशन रेशियो. ओके, नाउ आई एम अगेन सेइंग internally generated goodwill, और internally generated goodwill होगी, it should not be recorded. It should not be recorded in balance sheet. बैलेंस शीट में नहीं आएगी, ठीक है. तो अगर इंटरनली जनरेटेड गुडविल की नहीं आएगी, केवल परचेज एंड एक्विजिशन से रिलेटेड गुडविल होगी, केवल वही है, ठीक है, मर्जर एक्विजिशन से रिलेटेड, ठीक है. नाउ दिस इज द न्यू एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, इम्पेयरमेंट एग्जामिनेशन. नाउ डिफरिंग फ्रॉम अदर असेट्स, गुडविल इज नॉट सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन. आज तक आप क्या पढ़ते थे बेटा, बताओगे गुडविल पे क्या होता था, आज तक हमने पढ़ा हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. गुडविल को हम क्या करते थे, अमोर्टाइज करते थे क्या. एक हेड होता था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. Depreciation and amortization, what's the difference between depreciation and amortization? Can you tell me?
Yes, class. Yes, sir. What's the difference between depreciation and amortization? The depreciation applies to tangible assets, while amortization applies to intangible assets. Correct, correct. So depreciation is mainly charged on tangible assets. ठीक है, कोई भी tangible assets हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट. ठीक है, depreciation. Amortization means mainly charge on intangible assets. Intangible assets, क्योंकि आपको पता होगा लाइफ, किसी भी एसेट्स की लाइफ एक कैसी होती है, डेफिनेट होती है. जनरली टेंजिबल एसेट्स हैव अ डेफिनेट लाइफ और यूजफुल लाइफ. फॉर यूजफुल लाइफ होती है लाइक 5 years. लैपटॉप की लाइफ 5 years होती है. मशीनरी की लाइफ इट में भी 5 years, इट में भी 10 years. ठीक है, बिल्डिंग की लाइफ 20 years. ठीक है, तो वी हैव टू डेप्रिशिएट द मशीनरी और द टेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. तो हमें यूजफुल लाइफ तो उसको जब तक यूजफुल लाइफ है 10 साल तक उसको डेप्रिशिएट करना होता है. So we will charge the depreciation in the P&L account. Similarly, we charge amortization in the P&L account, profit and loss account. But आज तक आपने जब तक पढ़ा होगा अगर अकाउंट स्टैंडर्ड से, तो गुडविल और इंटेंजिबल एसेट. अगर आप ये गुडविल पर मैंने आपको बताया था, गुडविल इज आल्सो एन इंटेंजिबल एसेट. ठीक है, ये लिखा था मैंने, ये लिखा आप, गुडविल इज आल्सो एन इंटेंजिबल एसेट. तो यहाँ पे लिखा है कि अमोर्टाइजेशन चार्ज और इंटेंजिबल एसेट, तो उसमें गुडविल भी आ जाती थी. लेकिन अब जब नए रूल आए हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस, ठीक है, वो कहते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल को छोड़ दें. ठीक है, गुडविल को छोड़ दें, उन सब पर हम कर उन पे हम करते वही अमोर्टाइजेशन जैसे हम यूज करते थे, अमोर्टाइजेशन चार्ज करते थे, वैसे अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे. लेकिन गुडविल पर अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. गुडविल इज नॉट सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन, रेदर इट अंडरगोज रेगुलर, मतलब हमेशा रेगुलरली देयर वुड बी इम्पेयरमेंट टेस्ट. एक इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा. तो अभी गुडविल पर क्या होगा, इम्पेयरमेंट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट एंड अमोर्टाइजेशन. अमोर्टाइजेशन किस पर चार्ज होता है, सारे इंटेंजिबल एसेट को गुडविल को छोड़. लेकिन इम्पेयरमेंट किस पर चार्ज होगा, ओनली गुडविल, ओनली गुडविल. इम्पेयरमेंट क्या होता है बेटा, इम्पेयरमेंट मींस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल फॉल्स बिलो इट्स रिकॉर्डेड बुक वैल्यू. ठीक है, उसका मतलब क्या है बेटा, गुडविल है, जैसे अभी आपने गुडविल है ना 20,000 दिखाई थी, तो दिस इज गुडविल यू विल शो इन द बैलेंस शीट. मैंने बताया था जो एक्विजिशन रिलेटेड गुडविल है, यू विल शो इन द बैलेंस शीट, बट इंटरनली जनरेटेड गुडविल इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. सपोज, so this is the figure in your balance sheet 20,000, while fair market value after 1 year, let's suppose after 1 year, okay, of this goodwill it remains only 15,000. कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एक साल बाद केवल 15,000 आती है, जो आपने 20,000 में बैलेंस शीट में दिखा रखी. ठीक है, तो जब 5,000 होगा, दैट इज नोन एज इम्पेयरमेंट लॉस. दैट इज इम्पेयरमेंट, उसे इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं. ठीक है, जो 5,000 का 20,000 की आपने बैलेंस शीट में दिखाई है, फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर 1 year कितनी हो गई, आफ्टर 1 year 5,000, तो 15,000. तो लॉस कितना हुआ आपको, टोटल 5,000 का. दिस इज नोन एज इम्पेयरमेंट लॉस एंड इट इज रिकॉर्डेड. तो वही लिखा है, इफ मार्केट वैल्यू फॉल्स फॉलो द रिकॉर्डेड बुक वैल्यू, देन इट इज recorded in P&L. P&L अकाउंट में उसको रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? Yes, class, is it clear to you? Should I move forward? Should I move forward? Yes. Yes. Should I move forward? Yes, sir. ठीक. Okay, next. Okay. Now, let's take an example. Suppose Tech Corporation acquires innovative
Innovate Inc. for rupees 1 lakh. Okay, for rupees 1 lakh. The fair market value of identifiable assets is 70,000 lakh and liability are 20,000 lakh. Calculate the amount of goodwill. Can you calculate the amount of goodwill? कितनी होगी goodwill? Can you tell me? कितनी goodwill होगी बेटा? Okay, so goodwill would be acquisition cost, as I told you, minus net assets. Minus net assets. So acquisition cost is mainly 1 lakh. Net asset means assets minus liabilities. Assets minus liabilities. So now you calculate it. 1 lakh. 1 lakh is the acquisition cost given here. 1 lakh acquires innovative for 1,000. 1 lakh. Sorry. 1 lakh. 1 lakh lakh. Okay, 1 lakh lakh. Minus assets. Assets 70,000. 70,000 minus liability 20,000. Okay, lakhs again in lakhs. So 1 lakh minus 90,000. It becomes 10,000. 10,000 lakhs. This is the amount of the goodwill. Okay, simple. Okay. Now, sorry, 70 minus 20, 50. 70 minus 20 is 50. 7 minus 2, 5. 50. 50,000. 1 lakh minus 50,000 lakhs. 1 lakh minus 50,000 lakhs. So again 50,000 lakhs. 50,000 lakhs. This is the amount of the goodwill. Okay. Assets में liability minus करते हैं. Asset आपकी given थी 70,000. ठीक है. Liability आपकी given थी तो हम minus करते 50,000 बचा. फिर इतना परचेस फीस दी आपने 1 लाख का तो आपने एक्स्ट्रा क्यों दिया 50,000 लाख को गुडविल देते हैं. ठीक है. दैट इज नॉट एज गुडविल. वही लिखते हैं गुडविल. इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. ओके, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अगेन गुडविल अमोर्टाइजेशन एंड गुडविल इम्पेयरमेंट मैंने आपको पहले बताया, अभी बताया था. सो इन द पास्ट लिख भी रहा है सब सब. इन द पास्ट, अभी नहीं, इन द पास्ट में गुडविल वाज ऑफन अमोर्टाइज ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू फिजिकल एसेट. जैसे टेंजिबल एसेट्स को डेप्रिसिएशन लगाते थे वैसे गुडविल पर भी हम अमोर्टाइजेशन करते थे इन द पास्ट. हाउएवर अंडर द करंट, अब करंट सिनेरियो में क्या है, जो आईएफआरएस आए और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल इज नॉट प्रैक्टिस. नहीं मानते. ठीक है. क्यों नहीं मानते? रीजन भी, व्हाट्स द रीजन कि हम अमोर्टाइजेशन क्यों नहीं करते? पहले तो करते थे हम अमोर्टाइजेशन गुडविल का, अब क्यों नहीं करते गुडविल का अमोर्टाइजेशन? रीजन इज वी अज्यूम दैट गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन हम मानते हैं गुडविल की जो लाइफ होती है वो इंडेफिनिट होती है. ठीक है. कोई 10 साल में नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड लॉयल्टी है, ठीक है, गुडविल का पार्टी है, ब्रांड लॉयल्टी इज आल्सो गुडविल, कि 10 साल में खत्म हो जाएगी. हम उसकी फाइनाइट लाइफ नहीं कह सकते. जब फाइनाइट लाइफ होगी 10 साल तो हम नहीं कह सकते. हम मानते हैं उसकी लाइफ होगी इंडेफिनिट. ब्रांड लॉयल्टी की लाइफ हो सकता है. और फिलिप्स, आपने देखा फिलिप्स होगी, ठीक है, हैवेल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, चल रही है अब तक ब्रांड वैल्यू. ऐसा तो नहीं 10 साल में खत्म हो गई है, उनकी 15 साल में लाइफ खत्म हो गई. सो दे हैव इंडेफिनिट लाइफ. उनकी गुडविल कैसी? इंडेफिनिट लाइफ. तो जब इंडेफिनिट लाइफ है तो अमोर्टाइजेशन तो कर ही नहीं सकते. वी कैन नॉट amortize the goodwill. So we will test it for impairment. Okay. Let me again, we will compare the book value, goodwill की book value मतलब बैलेंस शीट वैल्यू. जो बैलेंस शीट में वैल्यू होगी उसको हम कंपेयर करेंगे उसकी रिकवरेबल वैल्यू से. रिकवरेबल वैल्यू कोई आपको बता रहा था क्या? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, रिकवरेबल वैल्यू की, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू. ठीक है, कितनी रिकवर कर सकते हैं. तो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हायर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू minus disposal cost and its usage value. ओके, जो भी दोनों में से हायर होगा, मतलब मेनली फेयर वैल्यू माइनस डिस्पोजल कॉस्ट. फेयर वैल्यू में जितना डिस्पोज करने में आपको पैसा लगता है कि, ठीक है, फेयर वैल्यू मार्केट में इतनी है, इतनी आप कॉस्ट देंगे उसको सेल करने की, उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी ना, लाइक दैट. ठीक है, तो फेयर वैल्यू माइनस डिस्पोजल कॉस्ट और इसकी यूसेज वैल्यू होगी. ठीक है, उन दोनों में से जो भी हायर होगा दैट वुड बी द रिकवरेबल वैल्यू. देन वी कंपेयर इट विद द बैलेंस शीट वैल्यू. If book value is greater than the recoverable amount, or we can say otherwise, और कैसे कह सकते हैं कि आपकी जो रिकवरेबल अमाउंट है
ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट है इफ इट इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, इट इज ग्रेट इफ इट लेस देन, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, इफ इट इज लेस देन बुक वैल्यू, कि आपकी बुक वैल्यू ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट मैंने भी बताया था फेयर मार्केट वैल्यू कम है, मार्केट में वैल्यू कम है, मार्केट में वो 80,000 वैल्यू है और आपकी गुडविल की बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है आपकी 1 लाख, ठीक है 1 लाख, and that difference is known as impairment loss and it is recognized on the income statement, income statement में शो करेंगे ऐसी लॉस, ठीक है, so this is the difference. Now these are some questions, so can you tell me the answers? Corporate financial reporting is important for yes class, marketing strategy, decision making, product development or recruitment process, which should be the correct? बी B. होना चाहिए सर. Decision making and transparency, okay. यस. Which of the following is not a key component of financial statement? Correct. Market share analysis. मार्केट Simple. शेयर. Common challenge in financial reporting. Branding and design, complexity of financial transaction, product pricing, customer service. B. Common challenge. बी Huh? कॉम्प्लेक्सिटी. Influence. Inaccurate financial reports can primarily affect B. vertical analysis in financial reporting helps in vertical बेटा vertical analysis है, ठीक है, एक होती है horizontal, एक होती है vertical. Vertical analysis helps in this should be the correct. Huh? कंपेयरिंग द कंपनी परफॉर्मेंस B. विद कॉम्पिटिटर्स. You are saying B. B or C. I mean, हाँ it could मुझे be सी लगता है इसका आंसर. You are B. saying B, so debt to equity ratio is type of debt to equity ratio किसका पार्ट है? ए. A. लीवरेज रेशियो डेब्ट टू इक्विटी वाला लीवरेज होता है ना, लीवरेज होता है ना, लीवरेज रेशियो. इन ड्यू पॉइंट एनालिसिस दिस इज इंपॉर्टेंट बट उसका क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में आता है. ड्यू पॉइंट एनालिसिस आरओई इज डिकम्पोज इनटू, मैंने बताया भी था आरओई का फॉर्मूला होता था, ठीक है, आरओई इज फॉर्मूला होता था, उसके इस पर बताओ कौन सा ठीक है. याद है थोड़ा बहुत भी वैसे देख के बता लग जाएगा. B. कौन सा आंसर है? which बी answer? लग रहा है सर. Yes, B है इसका आंसर. So again, वही decision making and transparency, market share analysis, complexity, investor decision making, understand the cost structure. देखो इसका आंसर वही था, मैंने बोला था वही होता है. जब हम रेवेन्यू मैंने बताया भी था, वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है वर्टिकल में, कि हम जो रेवेन्यू है, कॉस्ट है ना, कॉस्ट वाला एक्सपेंसेस, वो सब परसेंटेज और रेवेन्यू लेते हैं कि रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है, जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू का कितना परसेंट है, दैट इज नोन एज वर्टिकल एनालिसिस. ठीक है, तो सही वही वर्टिकल एनालिसिस. ठीक है, अगेन लीवरेज रेशियो है, मैंने आपको बताया था, और वही ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एसेट यूज एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल लीवरेज. दिस इज द आंसर. देयर आर सम अदर क्वेश्चन, कैन सॉल्व इट. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स. प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, कंपनी ने एक्वायर किया उससे पहले के प्रॉफिट्स, और कंपनी ने जब एक्वायर कर लिया है उसके बाद के प्रॉफिट, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा. ठीक है, तो सपोज ए द कंपनी ए अगेन एंड कंपनी बी, और लेट्स से company A is the Walmart. The Walmart acquires the Flipkart. Company company A acquires the company B. So Flipkart may have some profits before acquisition. Profits है before acquisition, जब acquisition नहीं हुआ ना उससे पहले कुछ प्रॉफिट होंगे. ठीक है, और कुछ प्रॉफिट इसको एक्विजिशन के बाद ही होंगे, दोनों को मिलकर जब मर्ज हो गए दोनों
दोनों फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया, then there are some profits after acquisition. So how should we treat these profits? This is important. So pre-acquisition profits are the earnings accumulated by the subsidiary company. Subsidiary होगी subsidiary company before it comes under the ownership of the parent company. वही मैंने बताया था, फ्लिपकार्ट अब तक एक्वायर नहीं करी थी वॉलमार्ट ने, अब तक पेरेंट कंपनी को ओनरशिप के अंदर नहीं आई, तो उसने जो भी अर्निंग्स एक्यूमुलेट की है सब्सिडी कंपनी, सो 2000 ओके. तो as they determine the division of subsidiary earnings between the parent company and subsidiary itself. So why these are important? So the process involves identifying the profits earned exclusively by the subsidiary before it joined the parent entity. मतलब अब तक इसको एक्वायर नहीं किया था, तो हमें पहले वो प्रॉफिट निकालना है, आइडेंटिफाई करना होगा वो प्रॉफिट जब उस कंपनी ने दूसरी कंपनी को वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर नहीं किया, तो कंपनी के प्रॉफिट कितने थे. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट. ठीक है, प्री एक्विजिशन से पहले के प्रॉफिट, तो बिफोर एक्विजिशन. ठीक है, बिफोर एक्विजिशन प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द वॉलमार्ट, यस और नो. अगर प्रॉफिट किसी कंपनी फ्लिपकार्ट को प्रॉफिट होंगे जब उसने वॉलमार्ट ने एक्वायर नहीं किया था, ठीक है, तो क्या हम उन प्रॉफिट्स को जब एक्वायर कर ले वॉलमार्ट, क्या वॉलमार्ट के शेयरहोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? कैन वी डिस्ट्रीब्यूट दोस प्रॉफिट्स टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द वॉलमार्ट, यस और नो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं, नो ना, नो, we cannot distribute. So these earnings are not meant for distribution to the parent company shareholder. नहीं कर सकते. ठीक है, कि शेयरहोल्डर्स ने, जो शेयरहोल्डर्स थे, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो अमाउंट लगाई थी वो बी में लगाई थी. एक्विजिशन तो नहीं, जब एक्विजिशन नहीं हुआ सब, पर एक्विजिशन नहीं था, ठीक है, तो बी में लगाई थी. तो अगर बी को फ्लिपकार्ट को प्रॉफिट होते हैं तो इन शेयरहोल्डर्स को जाना चाहिए ना. इन शेयरहोल्डर्स का क्या रोल है? इन्होंने तो कोई कैपिटल नहीं लगाई थी. ठीक है, तो दे आर यूजुअली केप्ट विद इन द शेयरहोल्डर सब्सिडरी और दे आर शुड बी असाइंड टू अ प्री एक्विजिशन रिजर्व. तो एक नया रिजर्व बना लेंगे, उनको कहेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व. ठीक है, सो दैट और दोज शुड बी शोन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्री एक्विजिशन रिजर्व, जिससे कि वो वॉलमार्ट के शेयरहोल्डर को ना जाए, जो प्रॉफिट दे वाले रिजर्व का प्रॉफिट किसको जाए? केवल पेरेंट कंपनी के, जो सब्सिडरी कंपनी के शेयरहोल्डर, मतलब फ्लिपकार्ट के शेयरहोल्डर से उनको जाना चाहिए. ठीक है, सिमिलरली व्हेन दिल्ली एंटरप्राइजेस Similarly, when that Delhi Enterprises, okay, Wise acquires Mumbai Tech, ठीक है, in the middle of the financial year, में acquire किया, ठीक है, financial year कब भी नहीं हुआ, middle of the financial year में acquire कर लिया. For example, it acquires the company in October, ठीक है, October. So from July, August, September, October, November, December, अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो अप्रैल टू सितंबर प्रॉफिट होगा और अक्टूबर से मार्च तक का जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो अप्रैल से सितंबर तक का जो प्रॉफिट होगा दैट इज नोन एज प्री, अक्टूबर से मार्च तक का होगा पोस्ट एक्वायर करने के बाद. ठीक है, तो ये प्री वाला प्रॉफिट होगा. और फिर से कह रहा हूँ, जो प्रॉफिट होगा अर्निंग्स होगी मुंबई टेक की अप टू दैट पॉइंट, मतलब इस सितंबर तक का. ठीक है, दैट शुड बी क्लासीफाई करना होगा आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट. ठीक है, and these profits are not part of the Delhi Enterprise consolidated income statement. तो उसकी Delhi Enterprise की consolidated income statement में शो नहीं करेंगे. इस वाले प्रॉफिट को आप शो नहीं कर सकते consolidated income statement, but they are represented separately in the consolidated balance sheet. तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में शो होगा. जनरली प्रॉफिट्स आपको पता होगा कहाँ से होते हैं, आपको पता है, इनकम स्टेटमेंट. प्रॉफिट्स आर शोन इन इनकम स्टेटमेंट, while this profit from April to September before acquisition, it should not be shown in the consolidated. क्योंकि जब कंपनी ने वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया, तो वॉलमार्ट क्या करेगी? ये कंसोलिडेटेड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट और सिमिलरली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगी. ठीक है, तो जनरली प्रॉफिट्स, अब जो प्रॉफिट्स थे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, आपको लगता होगा इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, नहीं, दिस शुड कम अंडर बैलेंस शीट में आएंगे, ना कि इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस. While
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स जो उसके बाद के हैं, फॉर एग्जांपल दिस अक्टूबर टू मार्च, वो प्रॉफिट्स कहाँ आएंगे? तो दोज प्रॉफिट्स आर एक्रूड बाय द सब्सिडरी आफ्टर एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद हुए हैं। सो अब वो प्रॉफिट अगर एक्विजिशन के बाद हुए हैं तो दैट मीन्स both the shareholders of the parent company as well as subsidiary company have a claim on this profit. So that means, so you have to incorporate these profits, post acquisition profits, where in consolidated income statement. This is the difference. Pre acquisition profit कहाँ आएंगे बैलेंस शीट में, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहाँ आएंगे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट. दिस इज द डिफरेंस. ओके, फ्रॉम, और कब से आएंगे? जिस फ्रॉम द एक्विजिशन डेट, जिस दिन एक्विजिशन हुआ है उस डेट से वो सारे इनकम स्टेटमेंट में आएगा. बाकी का उससे पहले का प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंस शीट. ठीक है, वही यहाँ पर एग्जाम्पल होता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है. ठीक है, तो कहाँ आएगा? इनकम स्टेटमेंट में. और कब से आएगा? कब से एक्विजिशन बाद ही आएगा, उससे पहले का प्रॉफिट है. एक्विजिशन के बाद का जो भी प्रॉफिट होगा वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा. उससे पहले का होगा और फ्री होगा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट. कंसोलिडेटेड, और कौन सी बैलेंस शीट? कोई नहीं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. So if Mid-Act makes a 10 crore profit in the later half of the financial year post acquisition, so it should be ticketed to the price consolidated income statement. ठीक है, contributes to the gross cumulative profit. तो दोनों का हो गया. ठीक है, उसमें क्या होगा ऐसे केस में? कुछ वॉलमार्ट का प्रॉफिट होगा, कुछ फ्लिपकार्ट का भी होगा. दोनों को एग्रीगेट करके टोटल करके हम इनकम स्टेटमेंट में ऐड करके, अगर पोस्ट एक्विजिशन. ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हम क्या करेंगे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो इन कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में आएगा. ठीक है, वो कितना आएगा? अक्टूबर से मार्च तक का. ठीक है, किसका? जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट पर एक्वायर कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट. ठीक है, प्लस कुछ प्रॉफिट किसका होगा? कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी वॉलमार्ट का भी होगा उस ईयर में. ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे वो इनकम स्टेटमेंट. दिस इज प्री एंड पोस्ट. नाउ वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स. So associate क्या होता है? Associate in a business in which investor has a significant influence. यहाँ significant influence होता है, typically reflecting by holding 20 and 50 to 50% of the voting rights. यहाँ 20 से 50% voting rights होल्ड करते हैं तो आपका significant influence होता है उस कंपनी पर. ठीक है, now अब आप कहेंगे सर associate और फिर सब्सिडी कंपनी में क्या डिफरेंस है? That we will understand by this example. So let's suppose take an investor company Tata Motors and the associate company Tata Technology. ओनरशिप कितनी है इस कंपनी की? 43% स्टेक है. इसका मतलब टाटा मोटर्स का टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड में कितना स्टेक है? 43%. इतना बड़ा स्टेक है. ठीक है, सो नाउ रियलाइज दैट टाटा मोटर्स होल्ड लेस देन 50% स्टेक, 43%, but more than 20% of the voting power of this Tata Technology Limited. So that means this Tata Motors have a significant influence, but not full control. ठीक है, full control नहीं है. इसलिए हम कह सकते हैं सब्सिडरी कंपनी नहीं है. टाटा टेक्नोलॉजी इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ टाटा मोटर्स. इट इज एन एसोसिएट कंपनी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सब्सिडरी एंड द एसोसिएट. सब्सिडरी कंपनी में क्या होता है? फुल कंट्रोल होता है. फुल कंट्रोल कब आता है? जब मोर देन 50%. देखा ना, लेस देन 50%. इफ इट इज मोर देन 50%, then it gives you significant influence as well as full control. While if it is less than 50% but more than 20%, it will gives you the significant influence but not the full control. That means it is an associate company. So Tata Technologies should be treated as an associate company in Tata Motors financial statement. So that means Tata Motors can influence strategic decisions, technology development, board representation, but it cannot कंट्रोल इट्स डेली ऑपरेशन बिकॉज ऑफ फुली कंट्रोल. तो पूरा कंट्रोल नहीं है तो उसके डेली ऑपरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते. सो इट इज नॉट अ सब्सिडी. नॉट अ सब्सिडी. सब्सिडी नहीं है बल्कि क्या है? एसोसिएट. दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, उस आपको याद रखना कितना वोटिंग पावर होनी है? 20% लेकर 50. इससे ना ज्यादा ना कम. ठीक है, मतलब इसके रेंज के बीच. नाउ in new accounting standards, investment in associate really accounting using equity method. So equity method के थ्रू हम accounting करते हैं. equity method क्या होता है? This is the method of equity method. ठीक है, equity method से हम investment in associate की amount calculate करनी होगी ना, कितनी amount आएगी. So there is a method for to calculate the investment in associate, that is equity method. So equity method we initially
record of the investment at its purchase cost, तो purchase cost आएगी. Then we will make a subsequent adjustment to reflect the investor's proportion of associated profit or loss. ठीक है. तो अब जो भी इन्वेस्टर कौन है? टाटा मोटर्स का जितना भी प्रॉफिट होता है एसोसिएट में उतना भी लॉस है, उसका जो प्रोपोर्शन होगा, और टाटा मोटर्स का सपोज करो 43%, तो 43% अगर एसोसिएट कंपनी में जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसका 43% उसकी इसमें परचेज कॉस्ट में उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे, एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड एज द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. ओके, so I think this is an example. Delhi Investment Limited wise 30% interest. कितना परसेंट इंटरेस्ट होता है? 30%. So it is greater than 20%, but less than 50%. तो एसोसिएट का केस है. ठीक है. और कितने में एक्वायर कर रहा है? 50 करोड़ एक्वायर कर रहा है. ओके. Now if TechStar declares a 20 crore rupees profit next year, 20 crore profit declare कर दे, then Delhi investment value would increase by कितनी इंक्रीज हो जाएगी? तो मैंने आपको बताया था कितने में एक्वायर किया था. इनिशियल परचेज कॉस्ट कितनी थी? 50 करोड़. तो ये मैंने आपको बताया था. यहाँ पर क्या लेता है आपको? तो पहले परचेज कॉस्ट, तो परचेज कॉस्ट आगे बेटा इधर परचेज कॉस्ट 50 करोड़ हमने इस कंपनी को एक्वायर किया है. परचेज कॉस्ट मैंने इसके बाद क्या बताया था? यू हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोपोर्शन इन एसोसिएट प्रॉफिट और लॉस. एसोसिएट के प्रॉफिट और लॉस में जो भी प्रोपोर्शन होगा उसके एडजस्टमेंट करेंगे. तो कितना परसेंटेज? 30% कितना है? 20 करोड़. 30% ऑफ 20 करोड़ 20 करोड़ 26 के एडजस्टमेंट करेंगे. तो रिवाइज इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56. तो हम ऐड कर देंगे. लॉस प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो माइनस. ठीक है. एंड इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट. नाउ अगेन वी विल लुक फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. गुडविल की होती थी ना इम्पेयरमेंट, वैसे इसकी भी हम देखेंगे. इम्पेयरमेंट तो नहीं है. ओके. इम्पेयरमेंट के लिए मैंने फिर से बता दी, वही कंडीशन वही रहेगी. यू हैव टू चेक द रिकवरेबल वैल्यू एंड कंपेयर इट विद, ठीक है. इफ रिकॉर्डेड अमाउंट एक्सीड्स द रिकवरेबल वैल्यू देन इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉर्डेड. ठीक है. लाइक गुडविल की तरह हम इसको भी रिकॉर्ड करें. ओके. फॉर एग्जांपल दिस इज द केस. So in this case, revised investment value कितनी बेटा? 56. तो revised investment value आपकी कितनी आ गई? 56 आ गई. ठीक है. रिकवरेबल वैल्यू आपने मार्केट से पता लगा. रिकवरेबल वैल्यू कितना रिकवर कर सकते हैं मार्केट से? तो केवल आपने देखा 40 रिकवर कर सकते हैं. सो यू कैन रिकवर ओनली 40. ठीक है. एंड दिस इज द रिकॉर्डेड वैल्यू. योर रिकॉर्डेड वैल्यू, दिस इज द रिकॉर्डेड वैल्यू एंड दिस इज द फेयर मार्केट वैल्यू. So this is greater than this, and this is 16 is the impairment. Carrying amount minus recoverable amount, this is the impairment loss. ये आपका impairment loss हो गया, and it will come under income statement. Income statement, ठीक है. Income statement नंबर आएगा. अब फिर से आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेंज जाएगी मतलब कितने के लिए? आपकी वैल्यू 56 करोड़. उसमें से आप माइनस करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस. इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? 16 माइनस करेंगे 40 वुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस शीट. 40 बैलेंस शीट. ठीक है. बेटा सबको समझ आया यूनिट 1? किसी को डाउट है? तो जो मैंने पढ़ाया आज, जो पढ़ाया मैंने, किसी को डाउट? सो दैट वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट नंबर 2. यस. Yes, class. Should we start next unit? Earnings per share. Now, yes. Okay, earnings per share. So it means company's profitability on a per share basis. ठीक है. अर्निंग्स तो हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं. नेट प्रॉफिट, अर्निंग्स मींस नॉट मेनली नेट प्रॉफिट.
ओके, अर्निंग से मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस नेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन शेयर, कि मेरे एक शेयर है, एक शेयर पे कितना नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, पर शेयर कितना नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट तो पूरा कंपनी के लिए ना, दिस इज फॉर द कंपनी। ठीक है, मेरा एक शेयर, मेरे पास एक शेयर है, तो मुझे इस नेट प्रॉफिट में मेरा मेरा अमाउंट कितना होगा, ठीक है, दैट इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। ओके, सो मेनली अर्निंग पर शेयर is used by the investors, analysts, and stakeholders to know the company's performance and make informed investment decision. कंपनी की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, ठीक है, अर्निंग पर शेयर जनरली इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट, स्टेकहोल्डर्स करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। ओके, सो अर्निंग पर शेयर इज द पोर्शन ऑफ, मैंने वही बताया था कि यहाँ पर बताया भी था, कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लेट्स सपोज कंपनी अर्न्स 1000 पर, ठीक है, उसमें से कितना पोर्शन इट इज एलोकेटेड टू ईच आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, ध्यान है, ओनली कॉमन स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक के हर शेयर को कितना प्रॉफिट एलोकेटेड है, दैट इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। कॉमन स्टॉक मींस ऑर्डिनरी स्टॉक, ऑर्डिनरी स्टॉक और इक्विटी, इक्विटी बोलते हैं ना, मैं लास्ट में बचती है इक्विटी स्टॉक। इक्विटी स्टॉक को 1000 हर शेयर को, सो हाउ सर डू आपकी कैलकुलेट, वॉइस ब्रेक हो रही है। तो देयर आर, अभी हुई है क्या? हेलो, हेलो, आ रही है? यस सर। So there are two types of earning per share. First is basic EPS, basic earning per share, ठीक है, बेसिक ईपीएस। ओके, बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, बेसिक बेसिक क्या होता है, बेसिक में आप समझते हैं, मैंने बताया था नेट इनकम, कोई नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न किया, माइनस उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड टू कॉमन स्टॉक, इट इज नॉट रिलेटेड टू कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक से रिलेटेड नहीं, प्रेफरेंस शेयर के लिए है ना, इक्विटी से रिलेटेड नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड टू इक्विटी, ठीक है। सो वी विल डिडक्ट दिस प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इफ वी डिवाइड दिस नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड weighted average number of equity shares, then we can get the basic EPS. Okay, weighted average कैसे निकालते हैं बताऊंगा, weighted average कैसे निकालते हैं, ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इतना आपका नेट अर्निंग्स है, ठीक है, जो इक्विटी होल्डर्स को अवेलेबल है, टोटल these are the total earnings, ठीक है, अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स को अवेलेबल, इतनी अर्निंग्स है, डिवाइड बाई इतने शेयर्स होंगे, इतने आपके शेयर्स हैं, उनसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन मैं इसमें लिखा है वेटेड, आपको वेटेड लेंगे, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, ठीक है, वेटेड क्या होता है थोड़ा बताएंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईपीएस, ठीक है, फॉर एग्जांपल बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड एंड एडजस्टेड। बेसिक तो मेरा अभी आपको फॉर्मूला बता ही दिया था, तो बेसिक इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, नेट इनकम to common shareholders minus preference dividend divided by the weighted average number of outstanding shares during a specified. Now what's the diluted? Diluted क्या होता है बेटा? Basic तो सुना आ गया, diluted क्या है? So dilution occurs when potential additional shares could be issued that would decrease existing shareholders ownership percentage. Okay. So dilution occurs when potential additional shares could be issued
that would decrease existing shareholders ownership percentage. Obviously बात है, डायल्यूशन कब होता है इक्विटी होल्डर्स का? सपोज एक कंपनी में ठीक है 1000 शेयर होल्डर्स है अभी, ठीक है 1000 शेयर होल्डर्स, ठीक है इन 2025 में। 2026 में क्या होता है, कंपनी ने 100 न्यू शेयर इशू कर दी, 100 न्यू शेयर इशू कर दिए। सो नाउ इक्विटी होल्डर्स कितने हो जाएंगे बेटा? 1100 शेयर हो जाएंगे ना, पहले 1000 ही थे, ठीक है अब हो गए 1100 शेयर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स मैं सपोज कर रहा हूँ हर शेयर होल्डर के पास एक ही शेयर है, अज्यूम कर रहा हूँ कि आई एम अज्यूमिंग ईच शेयर होल्डर हैज ओनली वन शेयर, दैट मींस 1000 शेयर्स। तो कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स थे कंपनी के 2025 में, लेकिन कंपनी ने 100 शेयर और इशू कर दिए 2026 में, तो टोटल नंबर न्यू शेयर्स कितने हो बेटा? टोटल शेयर्स कितने हो गए? 1100, ठीक है। तो आप देखो बेटा डायल्यूशन होगा नहीं होगा? डायल्यूशन प्रॉपर होगा। पहले नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, दिस रिमेन कांस्टेंट, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। सपोज करो योर कंपनी हैज अर्न 1000 करोड़ ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस कंपनी हैज declared dividend on preferred share 20 crore. Okay, so now remaining is 980 crore. 980 crore. This numerator remain constant. So 980 हो गया ना, 980। तो पहले तो 1000 थे शोल्डर्स, अब नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि जो प्रॉफिट आपका कांस्टेंट रहे, प्रॉफिट वजह चेंज ना हो, 980 ही रहे, लेकिन अब शोल्डर बढ़ रहे हैं आपकी 1100। तो अब क्या होगा, आपका ईपीएस कम हो जाएगा, पहले ईपीएस ज्यादा था, कम हो जाएगा, दैट इज नॉट अ डायल्यूशन, दैट इज नॉट अ डायल्यूशन। So dilution occurs when potential additional shares could be issued that would decrease the existing shareholders ownership percentage. So percentage कम हो जाएगा ownership. So it takes to account the effect of potentially dilutive security. Dilution कब हो सकता है? आप कहेंगे सर नए शेयर इशू करने से होता है और भी कोई तरीका है डायल्यूशन होने का? सो मेनली डायल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी इनसे बनती है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि डायल्यूशन कैसे हो सकता है। फर्स्ट है स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन से बन सकती है, कन्वर्टेबल बॉन्ड से हो सकती है, या फिर प्रीफर्ड स्टॉक से हो सकती है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। सो दैट कैन इम्पैक्ट योर अर्निंग पर शेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था 1000 शेयर्स कंपनी के जो मार्केट में है अभी, ठीक है। अब आपने स्टॉक ऑप्शंस भी इशू कर रखे हैं, स्टॉक ऑप्शंस कर लो या कुछ कन्वर्टेबल, कोई भी कन्वर्टेबल डेब्ट इशू कर रखा कंपनी ने, ठीक है, मार्केट में। तो स्टॉक ऑप्शंस कंपनी ने 100 स्टॉक ऑप्शन इशू कर दिए हैं मार्केट में, 100 ही कन्वर्टेबल कंपनी ने इशू कर दिया है। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं स्टॉक ऑप्शन को एक्सचेंज कर लूं और आई कन्वर्ट दिस स्टॉक ऑप्शन इनटू स्टॉक्स, कि मैंने ठीक है मुझे 100 शेयर दे दो, मैं 100 शेयर ले लूंगा। या फिर डिबेंचर होल्डर कहते हैं कि ठीक है हमें डिबेंचर होल्डर को वी आर रेडी टू कन्वर्ट आवर डेट इनटू इक्विटी, तो सो दे एग्री फॉर न्यू 100 शेयर्स। ओके, कन्वर्टेड डेट का मतलब है कि डेट शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 शेयर तय आ जाएगा। सो अब क्या होगा बेटा, वही फिर से 980 रहेगा प्रॉफिट, लेकिन अब 1000 से डिवाइड नहीं होगी, यू विल डिवाइड दिस बाय 1100, ठीक है। दिस इज नॉन डायल्यूशन। थर्ड है बेटा एडजस्टेड। एडजस्टेड मींस where company may face, so the company may face some extraordinary events or one-time charges that can significantly impact their net income. इसमें न्यूमरेटर इफेक्ट होगा कि कंपनी को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हो गई, ठीक है, या कोई वन टाइम चार्ज ज्यादा देना पड़ा। वन टाइम चार्ज में मतलब एक्सेप्शनल, कोई एक्सेप्शनल आइटम हो गया। एक्सेप्शनल मतलब ये जो कभी एक ही बार देना पड़ता है, एक ही बार आपको कोई बड़ी पेमेंट, कोई कंपनी ऐसा था ना, अ कंपनी ए इज एक्वायरिंग कंपनी बी, ठीक है, तो उसमें एक वन टाइम पेमेंट होगी, वन टाइम पेमेंट होगी, एक्सेप्शनल रेट होगी, बार बार तो पे नहीं करेंगे, तो इट कैन इम्पैक्ट योर नेट इनकम, इट कैन इम्पैक्ट योर नेट इनकम, ठीक है। सो टू प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर विदाउट दीज एक्सेप्शनल आइटम्स, इन सब आइटम्स का इफेक्ट ना आए, so we will calculate the adjusted EPS. We will calculate the adjusted EPS. How do we calculate this adjusted EPS? By excluding such non-recurring expenses or gains from net income. तो नेट इनकम में अगर मान लो नेट इनकम गिवन है, ठीक है, आपको गिवन है नेट इनकम क्वालिफायर्स में इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम ऑफ 2000, ठीक है, और लिखा है इक्वल्स टू 10,000। ओके, तो आपको कौन सी नेट इनकम लेनी है ईपीएस कैलकुलेट करते समय? ईपीएस आपको कैलकुलेट करना है, तो ऊपर जो नेट इनकम आएगी कौन सी आएगी?
10,000, you have to exclude this income. This is not a regular income. This is a non-recurring income. So you have to exclude this income. 10,000 minus 2,000 divided by shares. कितने भी shares होंगे survive कर दो. So that is known as adjusted EPS. Okay. So this is the basic, diluted and adjusted. Now, ABC Limited reported the following information for December 2025. And net income is this. Reference dividend is given to you. Equity shares at the beginning given to you. On 1st July, company issued additional shares 2 lakh. Can you calculate the basic EPS? बेसिक एपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? कब इशू करा है? 1 जुलाई को. और कंपनी का ईयर एंड कब होता है बेटा? कंपनी का ईयर एंड होता है दिसंबर में. दिसंबर में ईयर एंड होता है. ठीक है. कंपनी ने नए शेयर इशू करे हैं 2 लाख 1 जुलाई को. उससे पहले दिसंबर में ईयर एंड होता है. ठीक है. सो फॉर्मूला क्या है आपको याद ही होगा. नेट इनकम कितनी बेटा? ऊपर 50 लाख गिवन है. 50 लाख करेक्ट. माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो -5 लाख. ठीक है. डिवाइडेड बाई वेटेड लेना है. वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स लेना है. वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम पीरियड लेंगे पहले तो. 6 मंथ्स के लिए आपके पास शेयर कितने थे? कितने शेयर्स थे कंपनी के पास? मेनली जैन से लेके जून तक. ठीक है. कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? 10 लाख. वाइल फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स 6 मंथ्स नेक्स्ट 6 मंथ्स कितने हो बेटा? 2 लाख. 12 lakh additional 2 लाख. ठीक है. और उसका वेटेड एवरेज करके कैलकुलेट करेंगे. तो वेटेड एवरेज करेंगे वही 6/12 अगेन 6/12. ठीक है. फिर वेटेड एवरेज कर लेंगे. यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे. अमाउंट लगाएंगे. अमाउंट यहाँ प्लेस करेंगे डिनोमिनेटर में एंड कैलकुलेट द बेसिक. ओके. तो भाई अब यहाँ पर उन्होंने किया है. फर्स्ट 6 मंथ तक आपके पास 10 लाख शेयर है. नेक्स्ट 6 मंथ में आपके पास कितने हो गए? 12 लाख हो गए. ठीक है. तो नेक्स्ट 6 मंथ में 10 तो थे ही प्लस 2 लाख और हो गए. ठीक है. तो 10 तो पहले के 2 लाख फिर हो गए. तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 6 बनेंगे. ठीक है. ये भी 10 लाख रहेंगे. तो दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट. ठीक है. तीनों में प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज. ओके. सर ये दोबारा 10 लाख इंटू 6/12 क्यों करा है हमने? तो कहाँ पर? ये जो आपने नीचे भी कैलकुलेशन करी है वेटेड एवरेज की. दोबारा क्यों किया है? ठीक. मतलब ऐसा भी कर सकते हैं. इसको दोबारा करने की जरूरत भी नहीं है. ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ऐसा करें कि जनवरी टू जून. ठीक है. 6 मंथ्स. ठीक है. 6 मंथ्स तक मेरे पास कितने शेयर्स थे बेटा? 10 लाख. ठीक है. 10 लाख. तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 6/12 करेक्ट. बट फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई टू दिसंबर, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स कितने हैं? इस वर्ड लिखा बेटा एडिशनल शेयर इशू करें. तो 10 तो पहले की थे प्लस 2 और हो गए. तो कितने हो गए टोटल? 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 6/12. आंसर विल रिमेन द सेम. कैसे भी कर लो, ऐसे कैलकुलेशन कर लो जैसे मैंने की थी, चाहे ऐसे कर लो, आंसर सेम आए. ठीक है. तो पहले 10 लाख थे. न्यू शेयर इशू हो गया एडिशनल 2 लाख. तो टोटल कितना होगा? 12 लाख. और 12 लाख 6 महीने के लिए 12 लाख. तो आपके इससे आंसर आ गया. तो आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों आंसर सेम ही आएगा. आंसर कितना आएगा? 11 लाख शेयर्स. टोटल 11 लाख शेयर्स. तो यू कांट से 10 लाख शेयर्स. यू कांट. अब आप डिवाइड जब कर रहे हैं ना, जल्दी आप 10 लाख से डिवाइड करेंगे. कुछ लोग 2 लाख से करेंगे, 12 लाख से करेंगे. नहीं, आपको कितने से करना है? वेटेड एवरेज लेके 11 लाख से डिवाइड. ओके. देन यू कैलकुलेट द प्रॉपर बेसिक EPS. ठीक है. वही करा है. 50 माइनस 5 45 हो गए. नेट इनकम माइनस डिविडेंड 45 एंड दिस 11 लाख शेयर्स 4.0. दिस इज द बेसिक. ठीक है. करके बता देता हूँ. सर ऑर्डिनरी ईपीएस और जो हमारा बेसिक ईपीएस है उसमें डिफरेंस क्या होता है? 6 लाख हो गए. 5 और 6 11 हो गए. 5 प्लस 6 11 लाख. हाँ. बेसिक और किसमें? ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी. नहीं, कोई डिफरेंस नहीं. बेसिक और ऑर्डिनरी EPS एक ही चीज है. होता सेम.
बेसिक और ऑर्डिनरी में नहीं होता, डायल्यूटेड में होता है। बेसिक और डायल्यूटेड होते हैं, ठीक है। डायल्यूटेड, बेसिक, डायल्यूटेड और एडजस्टेड, तीनों, ठीक है। डायल्यूटेड होता है। आप कंपनी की किसी की रिपोर्ट का पढ़ेंगे ना, किसी की रिपोर्ट अगर कंपनी की देखते हैं, सो यू विल फाइंड ओनली, मेनली तो टू एडजस्टेड भी नहीं होता, मेनली टू ही मिलेंगे आपको, बेसिक मिलेगा और डायल्यूटेड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एडजस्टेड तो पहले उनके लिए है ना, नया कोई नॉन रिकरिंग इनकम है उसको हटा के। तो जनरली हम जब लेते हैं ना ईपीएस, तो जनरली कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा आइटम तो ना ही लें, ठीक है। तो बेसिक और डायल्यूटेड मिलेगी, बेसिक और ऑर्डिनरी होता है। नेक्स्ट इज डायल्यूटेड। डायल्यूटेड में वही नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, वही वेटेड शेयर्स। अभी तक तो फॉर्मूला देखो इतना सेम ही था, उतना, ठीक है। बस इसमें क्या हो गया, पोटेंशियल शेयर ऐड कर दिया हमने, दैट डायल्यूटेड। पोटेंशियल शेयर्स कब, कैसे, वही अभी बताया था, स्टॉक ऑप्शंस। किसी को मैंने स्टॉक ऑप्शन दे रहा राइट दिया है, ठीक है। जब चाहे आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैंने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रखी है, ठीक है। तो जब चाहे उसको राइट दे रखा है, जब चाहे वो डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। तो वही है, अब यहाँ पर अमाउंट देखिए, आपको नेट इनकम है, शेयर्स है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस है, कन्वर्टेबल इनटू 2 लाख शेयर्स, ये आप चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय को हमने स्टॉक ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टॉक ऑप्शन अभी आपने पढ़ा भी होगा, ईएसओपी, ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। इसमें हम क्या होता है, एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन दे देते हैं, राइट दे देते हैं कि कंपनी को हम उनको स्टॉक ऑप्शन देती है, जब चाहे वो उन स्टॉक ऑप्शंस को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय ने, ठीक है, एम्प्लॉय, सो ऑल एम्प्लॉय एग्रीज, ऑल एम्प्लॉय एग्री टू convert this stock option into shares. So that would be converted into 2 lakh shares. नए शेयर्स आ जाएंगे 2 लाख। तो डायल्यूटेड कितना होगा बेटा, सिंपल, 40 लाख डिवाइड बाई 10 लाख प्लस 2 लाख, जैसे डायल्यूटेड होगी, ठीक है। तो डायल्यूटेड ईपीएस देखें आप कितना हो गया, इट फॉल्स फ्रॉम, तो पहले कितना था, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करें इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में हम बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 40 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है उनको कन्वर्ट नहीं, उनको नहीं करेंगे। पोटेंशियल में जो उनको पोटेंशियल है, मतलब कन्वर्टेबल है, होता है कन्वर्टेबल स्टॉक ऑप्शन, उन्हीं को लेंगे। तो बेसिक ईपीएस में खाली इतना फॉर्मूला आता है, नेट इनकम माइनस डिवाइडेड बाय वेटेड शेयर्स, तो आगे 40 डिवाइड बाई 4, 4 आ गए। लेकिन पोटेंशियल शेयर भी हमने कंसीडर करे 10 प्लस 2, 12 लाख हो गया ना, 40 डिवाइड बाई 12, तो वो करा तो हमने आंसर आया 3.33, ठीक है। डायरेक्टली जनरली क्या होता है, बेसिक ईपीएस आपका ईपीएस फॉलो, मतलब बेसिक ईपीएस आपका ज्यादा रहेगा और डायरेक्टली बहुत कम होगा 3.6 ड्यू टू पोटेंशियल एडिशनल शेयर्स, ठीक है। नाउ कम्स टू द एडजस्टेड ईपीएस, इसमें एडजस्टेड निकालना है। चलो कैलकुलेट करके बताओ कोई ना, कैसे कैलकुलेट करें एडजस्टेड को, क्या करूँ उसमें, सुमन टाइम यस, हाँ हाँ, क्या करना चाहिए, नेट 30 इनकम लाख प्लस नेट इनकम माइनस वन टाइम वन टाइम एक्सपेंसेस, करेक्ट। एडजस्टेड में भी होता है ना, कोई वन टाइम एक्सपेंस है, ये प्लस करना है माइनस करना है इसको, नेट इनकम 30 लाख है, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग वही मैंने आपको बताया था लास्ट में, मर्जर एक्विजिशन पढ़ाया था लास्ट सब्जेक्ट वही है रीस्ट्रक्चरिंग। तो 5 लाख का आपको वन टाइम एक्सपेंस, अब हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, बताओ। माइनस करेंगे सर, एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस प्लस ही करेगा ना, ठीक है। प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, 35 आ गया, 35 डिवाइड बाई 10, 3.9, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंस को हमने क्या करा, एड बैक कर ली, क्योंकि नॉन करेंगे, बार बार नहीं होगा, ठीक है। इनकम होती है यहाँ पर, इनकम होती है तो माइनस कर देंगे, एक्सपेंस है तो प्लस करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, बोनस शेयर्स आल्सो नोन एज, आपको याद रखना, तो एग्जाम में आ सकता है, आप कंफ्यूज हो जाओ सर, बोनस शेयर्स को हम स्क्रिप इश्यूज भी बोलते हैं, स्क्रिप इश्यूज और कैपिटलाइजेशन इश्यूज। इश्यूज मतलब वो इश्यू करते हैं ना, शेयर इशू, इशू, स्क्रिप इशू और कैपिटलाइजेशन इशू। सो मेनली issuance of bonus shares involves capitalization of the company's free
फ्री रिजर्व्स, ठीक है, विच आर देन कन्वर्टेड इनटू एडिशनल शेयर्स। वही होता है, कंपनी के पास कोई फ्री रिजर्व्स है, ठीक है, कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं, फ्री रिजर्व्स होते हैं, तो हमको कन्वर्ट कर देते हैं शेयर्स में, देन वी कैन इशू द देन वी कैन इशू द बोनस शेयर। तो बोनस शेयर जनरली कैसे इशू होता है, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स और द फ्री रिजर्व्स, ठीक है, कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं या फ्री रिजर्व्स होते हैं, उनको कैपिटलाइज करके ही हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, कंपनी इशू कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी के पास आपको लगता है फ्री रिजर्व है, उसका कुछ यूज नहीं हो रहा, तो कंपनी कैन यूज those reserves for issuing the bonus share, ठीक है। So you can't use like debenture redemption reserves, debenture redemption reserve can't use, this is not a free reserve नहीं है। So shareholders receive these bonus shares in proportion to existing holding, ठीक है। For example, if you own 100 shares in a company, then it's a company issue या bonus issue of 1:1, ठीक है, कि एक शेयर वाली एक जिसके पास एक शेयर होगा उसे बोनस शेयर भी एक ही मिलेगा, देन यू विल रिसीव 100 एडिशनल शेयर्स, क्योंकि आपके पास 100 शेयर है, ठीक है, 1:1 के हिसाब से 100 शेयर और मिल जाएंगे आपके पास, तो नाउ यू विल हैव 200 शेयर्स, आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे, ठीक है, 100 आपके पास पहले से थे, 100 बोनस शेयर होगा तो 200 शेयर्स, ओके। ABC Limited reported the following information: net profit available to equity shareholders 24 lakh, equity share around shares outstanding on 1st January 6 lakh shares, on 1st July company issued again 2 lakh shares for cash, on 1st October company made a bonus issue of 1 share for every 4 shares held. Now calculated the weighted average number of shares and the basic EPS. यस, कोई कर बताओ, थोड़ा हेल्प करो मुझे कैलकुलेट करने में, कैसे कैसे कैलकुलेट करें बेटा। पहले तो हमें वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, तो वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की टाइम पीरियड ले लेते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड बेटा 1 Jan, ओके, एंड 1 to कब तक, July 1, और मैं आई कैन से June 30, 6 months, करेक्ट, 6 months, कितने शेयर से कंपनी के पास 6 लाख, करेक्ट, 6 लाख कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 6/12, 6/12, करेक्ट। ऑन 1 जुलाई कंपनी इश्यूड 2 लाख शेयर फॉर कैश, तो 1 जुलाई को कंपनी ने 2 लाख शेयर और इश्यू कर दिए, ठीक है, 1 जुलाई, और कब तक करें, वही 1 अक्टूबर को फिर बेनिफिशियरी हुआ है तो सब पहले रुक जाते हैं 30 सितंबर पे, ठीक है। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हो गए, 3 महीने, 3 months, 3/12, कितने शेयर और शिफ्ट कर दिए, 2 लाख, 6 लाख तो पहले ही से 2 लाख और कर दिए, तो कितना हो गया, 8 लाख, ठीक है। अब 1 अक्टूबर से क्या हुआ है, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, ठीक है, कंपनी ने बोनस इश्यू करा है फॉर ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर है, ठीक है। तो हर 4 के बदले में 1 शेयर मिलेगा, बोनस शेयर मिलेगा, 4 शेयर होंगे तो कितना मिलेगा, 1 शेयर, तो इफ यू हैव 4 शेयर्स देन यू विल गेट अ 1 बोनस शेयर, ओके। सो नाउ कितने शेयर्स थे अभी आपको, कितने आउटस्टैंडिंग चल रहे थे, 8 लाख, 8 लाख थे, 8 लाख थे, कितने शेयर्स मिलेंगे बताओ, 4 पे 1 तो 8 पे बनेंगे, 2 lakh. 8 लाख डिवाइड बाई 4, 2 लाख, 2 लाख शेयर्स और बोनस इशू हो गए, ठीक है। 8 लाख पहले के, 2 लाख बोनस इशू, तो कितने होगा, 10 लाख, 10, ठीक है। 8 पहले के थे, 2 अब के हो गए बोनस इशू, 10 लाख, और कितने महीने का, फिर से अगेन 3/12, ठीक है। इससे आपका आ जाएगा बेटा वेटेड, सबको टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन टोटल करेंगे, सम करेंगे, then you will find the weighted number of shares. Now how do we calculate the basic EPS? Basic EPS again, net income आपको डायरेक्ट गिवन है 24 लाख, 4 लाख डिवाइड बाई this amount, यहाँ पर आएगी, ठीक है। वही कह रहा है 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 6/12, अच्छा 2 लाख का ठीक है, क्या कर दिया उन्होंने, 24 लाख ठीक थे,
लेकिन इनके हिसाब से वेटेड 7 लाख। इन्होंने यहाँ पर 8 लाख लिया है और देन एडजस्टमेंट फैक्टर लिया है, बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर जो 10 लाख मैंने आपको बताया ना, 8 को 2 और बढ़ जाएंगे 2 लाख के, 10 लाख हो गए बोनस के बाद, 10 लाख ही हो गए मेरे भी। तो मैंने 1.25 से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन हम डायरेक्ट उससे कैलकुलेट करें, ऐसा हमने किया था, आंसर सेम आए। हमने क्या किया था यहाँ पर 8 की जगह 10 करेंगे, 10 लाख 3/12, ठीक है ऐसे किया था। हो जाएगा यहाँ पर। कितना आएगा बताना, 10 लाख 3/12 3/4 2.5. 2.5 ना, 3/12 24 25 तीनों में 5 और तो 7 7.5 हुए, तीनों 7 आ रहा है आपके इसमें फ्लैट में। 10 लाख ठीक है। सर बोनस शेयर वेटेड शेयर में ऐड नहीं होगा ना? हाँ, लेकिन अच्छा ईपीएस, सॉरी ईपीएस बिफोर बोनस इशू है, सॉरी ईपीएस बिफोर बोनस, आफ्टर वाला खाना। अच्छा आफ्टर है नहीं, बोनस इशू से पहले का है, ठीक है। इट इज ईपीएस बिफोर बोनस इशू, बोनस इशू से पहले के लिए वो बोनस इशू नहीं था, 7 लाख शेयर्स थे, 7 लाख ही होंगे, अगर बोनस इशू नहीं होगा तो कितने होंगे, 7 लाख होंगे, 8 लाख 1 लाख 4 लाख 3 लाख, सही है हाँ, फिर तो 7 लाख है, तो ठीक है। इसमें थोड़ा बिफोर था ना, तो 7 लाख ही होंगे। देखो 6 लाख मल्टीप्लाई 6/12 ठीक था हमारा, 6 में 2 ऐड और हो गए थे, ये वाले 2 लाख, 8 लाख हो गए, ठीक है। 3/12 करने की जरूरत ही नहीं है, हमसे मानते बोनस शिशु हुआ ही नहीं था, हमसे मानते बोनस शिशु नहीं था, काट के इस लाइन को, ठीक है, डिलीट कर दो इस लाइन को। तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 6/12 ही करूंगा, अगले 6 महीने तक 6/12 थे, नॉट जुलाई टू दिसंबर, जुलाई टू दिसंबर, तो कितना हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख बता दें, 4 + 3 7, वही समझ, ठीक है। बिफोर बोनस इशू, आफ्टर बोनस इशू मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताई थी आपको मैंने, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज गाली लेगा, 8,75,000 आए, अपने भी नहीं आ रहे थे क्या 8,75,000? मुझे याद है कितना आ रहा था, पहले 3 लाख थे याद हो, ठीक है, फिर 2 लाख थे जो हमने कैलकुलेट किए थे, और फिर आ रहे थे शायद 2 लाख, कितने आ रहे थे, 10 लाख डिवाइड बाई, मैंने करवाया था 3/12, 1/4 2,25,000 आया था कितना, सॉरी 1/4 25 के बाद 4 एक क्या आएगा, ठीक है, 3 हो तो 5 हो तो 7, 7.5 लाख हुए, क्या हो रहा है 8,75,000। अच्छा, बेटा अभी तो समझ में आया, पहले यहाँ तक समझ में आया था, जैसे मैंने किया था 8,75,000 कैसे हुए थे मेरे, वो 7,75,000, 7,50,000 सॉरी, समझ में आया था वाला, यार समझ में आ गया, नॉर्मल बिफोर बोनस इशू तो समझ में आया सबको, 3.42 रहेगा नहीं रहेगा, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। वो तो क्लियर है ना, सिंपल है ना, इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया, मैंने बोनस इशू मतलब इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो पहले 6 महीने तक 6 लाख शेयर थे, फिर अगले 6 महीने में 2 लाख शेयर और इशू हो गए, तो टोटल हो गए 8 लाख, ठीक है। तो पहले 6 महीने 6 लाख थे, तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 6/12, 2 लाख और हो गए, तो कितने हो गए 8 लाख, 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 6/12, ठीक है, सिंपल 7 लाख हो गए, ठीक है। अब इसमें बोनस इशू में पता है क्या होगा, बोनस इशू में हम ये अज्यूम कर लेते हैं, इन्होंने अज्यूम किया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का था, हाँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मुझे ट्रीटमेंट भूल गया, करेक्ट। तो अगर हम बोनस इशू हम ये मानते हैं कि आपने कहा था 1 अक्टूबर का हुआ है, करेक्ट, 1 अक्टूबर का हुआ है, ठीक है। अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें 1 अक्टूबर के हिसाब से, तो हमारे बोनस इशू के हिसाब से जो शेयर्स आ रहे हैं वो अलग आएंगे, कितने आएंगे, मैंने आपको बताया था अभी 6 लाख शेयर्स 6/12 6 महीने के लिए, फिर थे शायद 8 लाख शेयर्स अगेन 3 महीने के लिए, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको 10 लाख शेयर्स
अगेन 3 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया बोनस इशू हुआ है इसमें अक्टूबर में, अक्टूबर से दिसंबर तक। तो अगर इस हिसाब से हम कैलकुलेट करें मल्टीप्लाई कर करके, तो अमाउंट जो आएगी वो आएगी, इसकी आएगी वही 3 लाख, ठीक है, 3 लाख की आएगी 1/4 2 लाख, 5 2 7, और इसकी आपने बताई थी मुझे 2,50,000 है। 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 लाख डिवाइड बाई 4, 2,50,000 है, 2,50,000 है, 3 हो तो 5 हो तो 7, टोटल कितना हो गया बेटा? 7,50,000, ठीक है। लेकिन तो ये तुम्हारा जो एप्लीकेशन हुआ वो कैसा हुआ? प्रोस्पेक्टिव। लेकिन इंडियस में अब ये नई कंडीशन आई है IAS और इंडियस 33 में, ठीक है, यू हैव टू अप्लाई रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ शेयर्स। रिट्रोस्पेक्टिव पर डिस्कस लिया, रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से जब सही। सो इफ बोनस शेयर्स वर काउंटेड ओनली फ्रॉम डेट ऑफ इशू, अगर हम बोनस शेयर को डेट ऑफ इशू से काउंट करते हैं, डेट ऑफ इशू कहते हैं आपकी 1 अक्टूबर 2025, तो हो गया प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव कि उसी दिन से हमने काउंट किया, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव होगा। सो दैट मीन्स, तो अगर हम उसी डेट से करेंगे देन EPS बिफोर एंड आफ्टर द बोनस इशू वुड नॉट बी कंपेरेबल। बिकॉज क्यों कंपेरेबल नहीं होगा? प्रॉफिट वुड रिमेन द सेम, प्रॉफिट सेम ही है, ठीक है। शेयर्स नंबर वुड चेंज आर्टिफिशियली, कह रहे शेयर्स नंबर आर्टिफिशियली चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जैसे 6 से 8, 8 से 10 हो गए। So you are merely capitalizing the retained earnings or the reserves and issue bonus share to the existing shareholders. This is the important point, ठीक है। And the economic position of the company remains unchanged. आप क्या कर रहे हो बेटा? एक प्रॉफिट था, ठीक है, वो प्रॉफिट नहीं रहा, उससे आपने शेयर इशू कर दी, ठीक है, बोनस शेयर इशू कर दी। प्रॉफिट जो पहले प्रॉफिट था और प्रॉफिट नहीं रहा, वो बोनस शेयर इशू, बोनस शेयर इशू कर दी, ठीक है। तो बस प्रॉफिट को हमने क्या कह सकते हैं, हमने उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज करी है। अब वो प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, उसमें बोनस शेयर बोलेंगे, ठीक है। अमाउंट सेम है, प्रॉफिट लगभग सपोज करो 2 लाख का है, बोनस शेयर कितने के थे? बोनस शेयर कितने? तो फॉर एवरी वन शेयर यू आर इशूइंग 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स, ठीक है, वैल्यू 2 लाख, तो 2 लाख की थी, तो 2 लाख का प्रॉफिट आपने कन्वर्ट कर दिया 2 लाख बोनस शेयर्स में, 2 लाख बोनस शेयर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट को तो रखना है अनचेंज, प्रॉफिट में हम चेंज नहीं कर सकते। जो ऊपर EPS में लिखता है ना फॉर्मूले में, EPS प्रॉफिट आता है ऊपर, उसमें से हम प्रॉफिट में से इस 2 लाख जो कन्वर्ट किया है उसे हम माइनस नहीं करेंगे, बट यू नो इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ आता है? बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में आता है, ठीक है। और रिजर्व सरप्लस में ही आपको पता होगा वो रिजर्व ही आता है, कौन सा वाला? फ्री रिजर्व से आते हैं, ठीक है, उससे ही आप बोनस शेयर इशू करते हैं। तो ये प्रॉफिट है, मतलब कोई रिटेन अर्निंग है, रिजर्व सरप्लस है बैलेंस शीट का, ठीक है। तो अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो देन इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, तो वी आर बिकॉज़ यू आर कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट्स, बट इंडिया सेज इट शुड बी देन टू सेव दिस, टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, प्रॉफिट जैसा है वैसे रखेंगे। तो प्रॉफिट में जब एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा, हमें रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना होगा। इसीलिए इंडियस ने बोला रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करने के। दैट मीन्स रिट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है ना, आपने कभी कभी आपका प्रमोशन ड्यू होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, कि आपका प्रमोशन ड्यू हो गया, ठीक है, आपको 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए, तो आपको सैलरी जब मिलती है वो रिट्रोस्पेक्टिव मिलती है, मतलब जिस दिन से आपको प्रमोशन ड्यू होता है, भले आपको 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन आपको एरियर्स आएंगे 2 महीने पहले के भी, ठीक है, जब से आपको प्रमोशन ड्यू हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है कि हम ये मानेंगे बोनस शेयर में जब हम प्रॉफिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? वी विल ट्रीट दिस बोनस शेयर्स आर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हम ये नहीं मानेंगे वो लास्ट में इशू करें, ठीक है। तो जनरली वैसे तो आप अक्टूबर को इशू करेंगे, लेकिन जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो वी विल assume these are issued at the beginning of the year, not at the end of the year. So we will adjust these weighted shares. तो कितने थे बेटा? 7 लाख थे, तो हमने बिफोर हमने बोनस शेयर से पहले कितने थे शेयर? 7 लाख बताए थे। सो अब हम क्या करेंगे? 4 के बदले में 1 शेयर मिलता है, ठीक है। बोनस इशू से पहले कितने शेयर थे? 8 लाख, मैंने भी बताया था 8 लाख, 8 के बदले में कितने मिलेंगे? 2 लाख शेयर। टोटल शेयर आफ्टर बोनस इशू कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख अभी हमने कैलकुलेट कर लिए थे, 10 लाख शेयर्स। अब हमें क्या करना है? इन्होंने कहा है कि हमें मानना है कि वो उस समय ही इशू हुए थे, फर्स्ट जनवरी को, तो उसके लिए हमें ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें हमें निकालना पड़ेगा बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर, बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है, क्योंकि इंडियस ने कह दिया रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि
हम प्रॉफिट को माइनस करने के लिए बोला, अगर प्रॉफिट में आप चेंज मत करिए, ठीक है। यू शुड कीप द इकोनॉमिक पोजीशन, प्रॉफिट रिमेन अनचेंज, इट शुड बी रिमेन अनचेंज। प्रॉफिट में आपको चेंज नहीं करना है, प्रॉफिट में आपको चेंज नहीं करना है। देन यू हैव टू चेंज इन द शेयर्स में चेंज करना होगा। शेयर्स में कैसे चेंज करेंगे? 10 लाख शेयर्स आफ्टर द बोनस इशू। बिफोर द बोनस इशू कितने शेयर्स थे बेटा? जब बोनस इशू नहीं होता था 8 लाख थे, तो 10 लाख डिवाइड बाई 8 लाख, फैक्टर कितना हुआ? 1.25। should multiply this by this factor by this total weighted shares, 7 lakh shares multiply by 1.25, 8,75,000, तो उससे डिवाइड करेंगे तब आएगा आपका EPS, ठीक है, 2.74, ठीक है। तो ये इंडिया की रिक्वायरमेंट, you should treat this bonus issue as issued at the beginning of the year, not at the end of the year, ठीक है। और जबकि कब हुआ तो 1 अक्टूबर को ही है। अब ऐसे में ऐसी एडजस्टमेंट कैसे करें? बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना। 1 अक्टूबर को हुआ, एक्चुअल में 1 अक्टूबर को हुआ है। इंडियस कहता है कि आप उसको बैक डेट से इम्प्लीमेंट करो, तो बैक डेट से आप अब तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना इस समय आके, कि जब 1 अक्टूबर आ चुकी है, अब 1 अक्टूबर का जो बोनस इशू कर रहे हैं, तो आप बैक डेट से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो फिर आपको उसको बैक डेट से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक एडिशनल एडजस्टमेंट करनी होगी। वो एडिशनल एडजस्टमेंट क्या है? आप निकाल लो टोटल शेयर आफ्टर बोनस, टोटल शेयर बिफोर बोनस, 10 लाख डिवाइड बाई 8 लाख 1.25, और total weighted share before bonus. So now multiply this bonus adjustment factor by the total weighted share before bonus adjustment. Then only then you calculate the real basic EPS. So you can see this numerical in your exams. ठीक है, प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब आपने देखा ना, बोनस इशू करने से EPS डाइल्यूट हो गया। पहले कितना था बेटा? पहले कितना था? 3.4, ठीक है। और बोनस इशू जैसे ही हमने किया तो कितना हो गया? EPS 2.7। तो मतलब क्या था? बोनस इशू डाइल्यूट्स द EPS। बोनस जब ये कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है, हमेशा EPS डाइल्यूट होता ही होता है, अनेक पे शेयर डाइल्यूट होता है, ठीक है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है बोनस इशू के? ठीक है, बस ऐसा आ भी सकता है थ्योरी में भी कि आपको न्यूमेरिकल भी आ जाए, साथ में अटैच में थ्योरी भी आ जाए कि एडवांटेज बता दो बोनस इशू के और लिमिटेशन बता दो, कोई भी 2 लिमिटेशन या 3 लिमिटेशन और 3 एडवांटेजेस, ठीक है। सो यू शुड नो द एडवांटेजेस। बोनस इशू मेनली इंप्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द शेयर्स। तो क्या बोनस इशू से क्या होगा? आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे मार्केट में, तो दैट मीन्स लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, मोर लिक्विड। देन सिग्नल्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, दैट मीन्स कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स, कंपनी के पास रिजर्व ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी के पास रिजर्व्स होंगे अच्छी खासी, तभी बोनस शेयर इशू हो पा रहे हैं, अदरवाइज तो बोनस शेयर इशू कर ही नहीं सकती ना कंपनी, ठीक है। रिजर्व नहीं होंगे तो कंपनी इशू नहीं कर सकती बोनस शेयर। रिजर्व हैं, फ्री रिजर्व हैं, तब इशू कर देगी कंपनी। तो इट सिग्नल्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। नो कैश आउटफ्लो फॉर द कंपनी, ठीक है, कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं है। इसी के लिए, इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि इंडियस 33 अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बोनस शेयर डज नॉट रिक्वायर एनी कैश पेमेंट, कोई कैश पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं अपने रिजर्व्स को, वही रिटेन अर्निंग्स को, रिजर्व एंड सरप्लस R&S को शेयर कैपिटल, मतलब एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में आता है ना, शेयर कैपिटल आती है आपकी, रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, ठीक है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो रिजर्व एंड सरप्लस का जो पोर्शन है, पहले हम यहाँ 2 लाख शेयर, यहाँ 2 लाख रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ दिखा रखा था, हम यहाँ से डिलीट करके 2 लाख यहाँ पर दिखाते हैं बस। वो नॉमेनिक्लेचर चेंज कर रहे हैं बस, कि हम यहाँ से 2 लाख को यहाँ ना दिखा के हम यहाँ दिखा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस प्लस कर रहे हैं, तो अमाउंट सेम ही रहेगी। जब टोटल करेंगे तब भी 2 लाख ही आएगा, वैसे भी करेंगे 2 लाख ही आएगा, ठीक है। So that India's 33 says that you should apply retrospective application of bonus issue. Then reward to existing shareholders. We are distributing these shares free of cost. कोई पैसा नहीं ले रहा है उनसे. Bring share price to affordable level. After a bonus issue, जब bonus issue होता है तो market price per share जनरली डिक्रीज होता है। कोई मुझे इसको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर सकता है कोई भी? अगर आप मार्केट के बंदे हो, बता सकते हो कि बोनस इशू के बाद मार्केट शेयर डिक्रीज क्यों होता है, और फिर अट्रैक्टिव हो जाता है छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, किसी कंपनी के शेयर में ले पा रहे थे, अगर बोनस इशू हो जाए तो मार्केट प्राइस कम हो जाता है और वो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को शेयर्स को ले सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? कैसे हो सकता है ऐसा? तो बताएगा। एक्चुअली सर लोगों में ये क्लियर हो जाता है ना कि
हाँ एक्चुअली, हाँ मैं तो बताने की, ठीक है। बोनस इश्यू मैं अभी मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट से रिलेशन है इसका, फर्स्ट वाले पॉइंट से ही। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए ना मार्केट में, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए मतलब सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी एज इन कंपैरिजन टू डिमांड, डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई इंक्रीज होगी। और जब सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाती है तो आपको पता होगा प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होगा। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, यदि सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में बढ़ जाए तो प्राइस क्या होंगे, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वही मार्केट से डिक्रीज हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव नॉट डिसएडवांटेजेस क्या है, कोई रियल वर्थ क्रिएशन, ठीक है, कोई रियल वर्थ क्रिएशन नहीं है बहुत ज्यादा। शेयरहोल्डर की वैल्यू जनरली मैंने बताया सेम ही रहती है। ठीक है, बोनस शेयर से नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ते हैं, तो आपने बता ही दिया नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, लेकिन मैंने अभी बताया था आपको मार्केट प्राइस तो कम हो गई पर शेयर। ठीक है, तो रियल अगर रियल मार्केट कैप निकालें, ठीक है, मार्केट कैप निकालें, मार्केट कैप तो सेम ही रहेगा ना, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस तो हो गया कम, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ गए बोनस इश्यू में, तो अल्टीमेटली मार्केट कैप तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट, मैं नहीं कह रहा कि प्रॉपरली, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो टोटल जो वेल्थ होगी मार्केट कैप की, क्या वेल्थ है शेयरहोल्डर्स की, वो सेम रहेगी। ईपीएस अभी मैंने आपको बता ही दिया था, अर्निंग पर शेयर कम हो गया था, मैंने बताया था प्रॉफिट को यहाँ सेम रखना है, प्रॉफिट को सेम रखेंगे, प्रॉफिट को सेम रखेंगे तो ईपीएस डिक्रीज हो गया था, मैंने अभी अभी प्रूफ करा आपको एग्जाम्पल में। फ्यूचर डिविडेंड प्रेशर, फिर ज्यादा अब शेयर्स क्या है मार्केट में, अब शेयर्स लाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अस्सी से बढ़े, डिविडेंड कंपनी में फेस प्रेशर टू मेंटेन डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, डिविडेंड की ऑब्लिगेशन बढ़ेगी कंपनी की। ठीक है, 100 शेयर्स थे, आपने 100 बोनस शेयर और इश्यू कर दिए। ठीक है, और डिविडेंड, पहले आप 100 शेयर पर डिविडेंड लेते थे, अब इन 100 शेयर पर भी आपको डिविडेंड देना होगा, तो डिविडेंड प्रेशर पड़ेगा। नॉट यूजफुल इफ रिजल्ट्स आर वीक, और रिटर्न अर्निंग्स ही बहुत कम है तो आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, पॉसिबल मिस इंटरप्रिटेशन बाय द इन्वेस्टर्स, सब इन्वेस्टर्स में wrongly interpret bonus issues as real income or extra wealth which may lead to unrealistic expectations। अब उनको तो लगे भैया, इन्वेस्टर्स को ये लगता है ना कि भैया बोनस इशू हो रहा है, ठीक है, बोनस इशू हो रहा है तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 100 शेयर्स थे मेरे, 100 बोनस शेयर और इशू हो गए तो 200 आ गए मेरे पास, तो आप खुश हो जाओ, आप खुश हो जाओ। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी वेल्थ जो है जनरली कॉन्स्टेंट ही रहती है। ठीक है, प्राइस कम हो जाएगा, अब वहीं की वहीं सेम हो, जनरली वेल्थ कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो इट्स इट्स मेरली एन इल्यूजन। ठीक है, वो ये डज बोनस इशू अफेक्ट अ कंपनी शेयर प्राइस, मैंने क्वेश्चन पूछा ना। ठीक है, दोनों इसमें आगे बताता हूँ, एग्जाम्पल भी है। यस, तो देयर आर टू पॉइंट्स फॉर दिस, डज अ बोनस इशू कंपनी शेयर प्राइस। ठीक है, so on one hand a bonus issue can create the perception of increased value for the shareholders, सबको लगेगा कि भैया बोनस इशू हो रहा है, ठीक है, तो सप्लाई जैसा मैंने बताया, सप्लाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, हो सकता है कि डिमांड भी बढ़ जाए, हो सकता है बेटा डिमांड भी बढ़ जाए उस कंपनी की। ठीक है, उस कंपनी की शेयर की, कि भाई कंपनी बोनस इशू कर रही है, वाला कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो डिमांड बढ़ जाए। तो अब इसमें सप्लाई भी बढ़ रही है बेटा, डिमांड भी बढ़ रही है, दोनों में से कौन किसको एक्सीड कर देगा। अगर मान लो डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है एज कम्पेयर टू सप्लाई, प्राइस क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वही लिखा है, इट कैन क्रिएट द पर्सन ऑफ इंक्रीज वैल्यू फॉर द शेयरहोल्डर व्हेन कंपनी इशू बोनस शेयर्स, इट इफेक्टिवली इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स but without changing the market cap, मैंने अभी बता ही दिया था। This can lead to increase in demand of the stock and drive the of the price, मैंने भी बताया कि ऐसा भी हो सकता है। On the other hand, some argue that bonus issue does not impact the intrinsic value of the company or ability to generate profits. Any increase in share price following a bonus issue may be more reflective of market sentiment rather than fundamental factor। इसका मतलब जो भी शेयर प्राइस में चेंजेस होते हैं बोनस इशू की वजह से, शेयर प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस होती है, ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, डिक्रीज मैंने बताया था अभी कि आपकी सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कॉन्स्टेंट है, या डिमांड बढ़ भी रही है लेकिन बहुत कम रेट से बढ़ रही है, सप्लाई में जो रेट है वो ज़्यादा, तो इससे इसमें प्राइस डिक्रीज होगी। कौन ही पॉसिबिलिटी है, प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस कम भी हो। ठीक है, दैट डिपेंड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट की क्या सेंटिमेंट्स rather than the fundamental factors। Again, we take a numerical share price before bonus issue 1000, किसी शेयर का प्राइस बोनस इश्यू से पहले 1000, बोनस इश्यू हुआ एक शेयर वाले में एक शेयर मिलेगा, आफ्टर बोनस इश्यू टोटल शेयर्स डबल,
डबल हो जाएंगे, एक के बदले में एक मिलेगा, मैंने बताया था भाई। 100 थे आपके पास, 100 के बदले में 100 और मिल गए, तो कितने हो गए? 200 हो गए, डबल हो गए। डबल। शेयर प्राइस अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाएगा। कैसे? न्यू प्राइस कैसा कैसे निकालेंगे? ओल्ड प्राइस 1000 डिवाइड बाई 1 प्लस बोनस रेशियो। बोनस रेशियो 1 1 प्लस 1 2 ओके, मैंने बताया ना डबल हो जाएंगे। 100 प्लस 100 200 शेयर हो जाएंगे, डबल हो गए। 1000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 500 हो, देखो हाफ हो गया। शेयर प्राइस हाफ हो गया। मार्केट कैप अगर आप निकालें, पहले कितना था? 1000 इज द शेयर प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1। एक शेयर था तो आपके पास 100 शेयर थे, प्राइस कितना चलता था? 1000, तो कितना हो गया? 1 लाख, ठीक है। अब मार्केट कैप कितना होगा? प्राइस कितना हो गया? 500, और आपके पास शेयर कितना हो गया? 200, तब भी 1 लाख रहेगा ना, सब सेम रहेगा। एक देखो, 1 लाख 1 लाख, तो मैथ सेम रही, बस आपके शेयर 500 से 1000 हो गए, लेकिन उतना ही मार्केट प्राइस का हो गया, ठीक है। तो बिफोर बोनस इश्यू शेयर होल्डर्स 100, प्राइस पर शेयर 1000, 1 लाख। अगेन शेयर होल्डर्स फॉर 200, प्राइस पर शेयर 500, टोटल वैल्यू 1 लाख, सेम रही, ठीक है। मार्केट कैप करने के लिए इस तरह से। ओके, ठीक है, समझ में आया आपको? जी सर। ईपीएस, Yes, sir. डाइल्यूटेड ईपीएस। हाँ हाँ हाँ, ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना, वो तो शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ शेयर कर दूँ, आज कर दूंगा। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई ना, तो आज मैं शेयर हाँ। कर दूँ। ताकि मैंने रिवीजन आज में उसके काम बाद आएगा। थोड़ी, आज मैंने 8:30 बजे, अभी तो आधा घंटा है, मैंने 53 में आएगी, तो पढ़ा नहीं पाया। कोई नहीं, आप स्टडी मटेरियल से थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है, कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रहा हूँ इतना, वी शुड स्टिक टू स्टडी मटेरियल। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। नंबर दे दीजिएगा तो मैं उस पर व्हाट्सएप पे कर दूंगा। हाँ व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। माई नंबर इज जी 8650 हाँ 5745। 8650574516। ओके सर। हमने कहाँ तक कवर कर लिया आज? मोर इश्यू हो गया हमारा कवर, वी शुड कवर दी आई थिंक राइट इशू, राइट इशू, करेक्ट। हाँ तो कर लिया, ठीक है। नाउ राइट इशू, राइट इशू, ठीक है। राइट इशू समझते हैं? राइट इशू क्या होता है बेटा? राइट इशू मीन्स व्हेन कंपनीज रेज एडिशनल कैपिटल बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स द चांस टू बाय मोर शेयर्स, ठीक है। अब कंपनी है, कंपनी का कोई एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है, कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई। कंपनी रिक्वायर्स 1 लाख और 1 करोड़ फॉर टू फाइनेंस दैट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कंपनी को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइनेंस करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो जल्दी क्या करेगी कंपनी? फ्रेश इशू करेगी, ठीक है। कंपनी पब्लिक को इशू कर सकती है, और कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? राइट इशू। कंपनी हो सकता है कि नए शेयरहोल्डर्स को ना देके, जो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स हैं कंपनी के, उन्हीं को कहे कि ठीक है, हम आपको शेयर इशू कर देते हैं और हमें 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप ही फाइनेंस कर दीजिए, ठीक है। दैट इज नोन एज राइट इशू। मतलब यार, यू आर रेजिंग एडिशनल कैपिटल बाई ऑफरिंग द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर द चांस टू बाय मोर शेयर्स, कि उन्हीं से एग्जिस्टिंग वालों को है कि आप और शेयर परचेज करिए, ठीक है। दैट इज नोन एज राइट इशू। हम मार्केट में फ्रेश इशू नहीं ला रहे हैं, मतलब, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स के हम कह रहे हैं कि वही और शेयर परचेज कर लो, उनके पास ऑलरेडी है और परचेज कर, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ऑफरिंग गिव्स द शेयरहोल्डर्स द राइट, यहाँ पर राइट दे देते हैं, व्हाट नॉट द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है टू परचेज न्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। जनरली हम डिस्काउंट प्राइस रखते हैं, कि प्राइस आपको डिस्काउंट प्राइस पे दे देंगे, बस आप और परचेज कर एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स, ठीक है। पर्पज क्या होता है राइट इशू का? राइट इशू का पर्पज होता है डायल्यूशन, डायल्यूशन को प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट द डायल्यूशन, कि नए शेयर अगर हम नए शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो और शेयर होल्डर आ जाएंगे, ठीक है।
तो जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल मेंटेन रहे, ठीक है, उनका कंट्रोल कंपनी से ना जाए, नए शेयर होल्डर्स के हाथ में कंट्रोल ना पहुंच जाए, उससे बचाने के लिए हम राइट इशू करते हैं, मतलब राइट इशू करते हैं मेनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू कर देते हैं शेयर्स, ठीक है, मेनली डिस्काउंट पर ही करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको राय दिया, राइट है होल्डर्स को, अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने वो लिखा एक्सरसाइज प्राइस फॉर दिस न्यू शेयर्स इज टिपिकली लोअर देन द मार्केट प्राइस एट दैट टाइम, तो मार्केट प्राइस से कम होगा वो डिस्काउंट होगा, ठीक है। Again, there are some advantages and disadvantages of right issue and related right issue. Advantages क्या है right issue के? You can raise capital quickly from existing investors without incurring high fees associated with external financing option like loans and issuing bonds. आपको रिक्वायरमेंट पड़ी वही 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, तो आप डायरेक्टली एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से ही पैसा ले सकते हैं, उस कैपिटल को रेज कर सकते हैं, तो आपको फीस सेव कर सकते हैं, फीस आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैंक क्या होगा ऐसी रिक्वायरमेंट कि आपको बैंक से लोन लेना पड़ सकता है, बॉन्ड इशू करने पड़ सकते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ फीस लगेगी, यू कैन सेव दैट फीस। हाँ, next you can strengthen shareholders loyalty and increase the liquidity in the trading when these new shares become tradable, ठीक है, अब उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स की, चलो कंपनी हमें इश्यू कर रही है, किसी और को नहीं ला रही, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है? पोटेंशियल डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप फॉर एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स इफ दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइजिंग दिस देयर सब्सक्रिप्शन राइट्स। अब मान लो वो मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो अपना राइट है उसको नहीं एक्सरसाइज करते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए शेयर्स, हम नहीं दे पाएंगे कंपनी को पैसा, हमने हमारे पास जितने शेयर है उतने ही शेयर है, हम नहीं कर पाएंगे, किसी को मतलब बाहर से ले लो, फ्रेश इशू कर, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रेश इशू होगा तो फिर नए शेयरहोल्डर्स और आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो मैंने बताया डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप, अगर वो जो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं परचेज करूँ, ठीक है, तो दी जाते डिसएडवांटेज। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ राइट इशू, तो कोई एग्जांपल तो है नहीं राइट इशू का, okay, we will discuss in the next class any example for right issue. There is no numerical only. Now, how do right offerings, right issue offering affect the company price? कि right issue से कंपनी के स्टॉक प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जैसा ही बोनस इशू बताया था कि राइट इशू का कोई इफेक्ट पड़ता है, यस, राइट इशू हैज आल्सो हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कंपनी स्टॉक प्राइस। सो व्हेन राइट ऑफरिंग इज अनाउंस्ड इट लीड्स टू इनिशियल डिक्रीज इन स्टॉक प्राइस, इनिशियली तो प्राइस कम हो जाता है जब राइट इशू अनाउंस होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज क्यों, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स में चूज नॉट टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड मे सेल देम ऑन द ओपन मार्केट लीडिंग टू इंक्रीज सप्लाई, मैंने अभी बताया था, एंड डिक्रीज डिमांड, वही ये बताया था मैंने आपको बोनस इशू में भी ये बताया था कि राइट इशू हो रहा है, जब बोनस इशू हो या चाहे राइट इशू हो, नए शेयर आ रहे हैं मार्केट में, जब मार्केट में नए शेयर आएंगे तो सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होते हैं, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होते हैं, वही वही लिख रहा है, प्राइस कम होगी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। हाउएवर एज द राइट ऑफरिंग प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे राइट बढ़ता रह जाता है, मोर इन्वेस्टर्स एक्सरसाइज देयर राइट्स, ठीक है, काफी सारे इन्वेस्टर्स अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे और एडिशनल शेयर्स को परचेज करेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाए, तो इनिशियली तो क्या होगा, प्राइस में डिक्रीज होगा, प्राइस में डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज होगी, लेकिन धीरे धीरे करके डिमांड इंक्रीज होगी, जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस फिर से बढ़ेगी, ठीक है। Okay. So this is the impact on market price of the right issue. Not treatment of convertibles on EPS. शायद हम कर ही चुके हैं अभी, convertibles का क्या ट्रीटमेंट होता है EPS पे, ठीक है। convertible bonds, कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है convertible हो सकती है, ठीक है। convertible bonds, so bonds can be convertible into shares, मैंने अभी बताया था, bonds को भी आप shares में convert, फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर एयरलाइन ने provide convertible bonds to the banks or convertible debentures to the banks. So that means banks can convert their loans into the equity shares. ठीक है, so there are several types of convertible bonds that investors can choose. For example, traditional convertibles,
वेयर बॉन्ड होल्डर्स हैव द ऑप्शंस, बॉन्ड होल्डर्स के पास क्या होता है, ऑप्शन होता है, राइट होता है टू कन्वर्ट देयर बॉन्ड्स इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स एट एनी टाइम बिफोर मैच्योरिटी। ऑप्शन की मैच्योरिटी होती है ना कि आपको 2 महीने का 3 महीने, आपको 1 साल दे दिया, 1 साल के अंदर कभी भी आप अपने बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज नॉट ट्रेडिशनल कन्वर्टेबल्स। सो यू कन्वर्ट देयर बॉन्ड्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एट एनी टाइम बट बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले जब चाहे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंडेटरी कन्वर्टेबल्स क्या होती है? मैंडेटरी, unlike traditional convertibles, these bonds require bondholders to convert their holding into shares at a specified date or event। यहाँ तो आपने कहा उसको ऑप्शन दिया है, ठीक है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है जो मैंडेटरी है, ठीक है, कि आपको उस दिन आपको कन्वर्ट करना ही होगा, कि एक डेट फिक्स कर देंगे 1 साल बाद आपको कन्वर्ट करना है तो करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी कन्वर्टेबल्स। नेक्स्ट इज कंटिंजेंट कन्वर्टेबल्स क्या होते हैं? कंटिंजेंट कन्वर्टेबल्स, कंटिंजेंट एज द नेम सजेस्ट, कंटिंजेंट मींस डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब कुछ कंडीशंस होती होंगी, अगर वो कंडीशन सारी फुलफिल हो जाती हैं तभी आप बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंडीशन क्या होगी? इश्यूअर्स की फाइनेंशियल हेल्थ अगर वर्सनिंग हो रही है, बिगड़ रही है, या उसने कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ब्रीच करी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? शेयर्स को उसके लिए कंडीशन बना देंगे, ठीक है, कि भैया अगर फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ रही है कंपनी की तो आप क्या करेंगे? यू कैन नॉट कन्वर्ट दो सिक्योरिटीज इनटू इक्विटी। कंपनी जैसे किंगफिशर एयरलाइन, उसकी कंडीशन बिगड़ रही है, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ लॉ कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन दीज कन्वर्टेबल्स, कि अगर लॉ चाहे, कोर्ट ऑफ लॉ चाहे तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, सेबी चाहे तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि भाई जो किंगफिशर एयरलाइन है वो कन्वर्ट नहीं कर सकती डेट को इक्विटी में, क्योंकि इसकी ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ रही है। सिमिलरली सिंथेटिक कन्वर्टेबल्स, सिंथेटिक कन्वर्टेबल मींस व्हिच ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन। सिंथेटिक का होता है कॉम्बिनेशन, होता है ना, सिंथेटिक मिक्स होके बनता है। सिंथेटिक कन्वर्टेबल मींस वेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज ऑप्शन, मतलब डेरिवेटिव्स। ना डेप्थ भी आता है आपको और डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं, दोनों का सिंथेटिक हो गया, तो दैट इज सिंथेटिक कन्वर्टेबल्स। एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, so that is that bondholders, it gives the right to exchange their bonds for the shares in the another company instead of the issuing company। जो कितना अच्छा है एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, कि आपको उसी कंपनी के अगर बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको मेरी कंपनी के शेयर परचेज करने, आप किसी दूसरी कंपनी के भी शेयर परचेज कर सकते हैं जिसके साथ कंपनी का टाई अप है, ठीक है, जैसे वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट है, ठीक है। तो वॉलमार्ट ने कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू करे, इसका मतलब क्या है? जरूरी नहीं है आपको बॉन्ड्स के बदले में शेयर्स मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है आपको वॉलमार्ट के लिए आप फ्लिपकार्ट के भी ले सकते हैं, तो दो आर नॉन एज एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, ठीक है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस स्टॉक, दैट मींस प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीडिटरमाइंड रेशियो। कुछ रेशियो डिटरमाइंड हो जाता है, अगर एक शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर है, उसको एक ही इक्विटी शेयर मिल जाएगा, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस स्टॉक, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्टेबल securities, examples of convertible securities. Okay, so next we will discuss in the next class some examples, some more numerical on this right issue, and then this calculation and dilution, ठीक है, consideration for financial reporting, strategy completion, सा theory है थोड़ी mainly आगे, and then I think unit 2 भी खत्म हो जाएगी फिर next class में, unit 3 पढ़ लेंगे next class में, ठीक है, थोड़ा भी बचता है unit 2 में भी, then we will discuss the unit number 3. Okay, thank you class. और किसी को डाउट? रवि, आपने मैसेज किया था? रवि, आपने मैसेज किया था पीपीटी के लिए? यस यस यस। हम्म, पीपीटी मैंने सेंड कर दिया। इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट है बेटा?
सिंपल ही है, जो अकाउंट्स पढ़ी है बस वैसे ही है, सिंपल है, बस थोड़ा सा टेक्निकल बोनस इश्यू का थोड़ा टेक्निकल है, बाकी तो ज्यादा टेक्निकल है नहीं। ठीक है, तो we will meet you in the next class. Okay. Thank you, Okay. sir. Thank you.